Hello, welcome to the video. Today I am going to talk about constitutional morality. So what is the definition? That is adherence to the constitution. Adherence to constitution or constitutionalism. These two are different things. First thing I will talk about constitutionalism. Then I will come to constitutional morality. So what is constitutionalism? The first thing is which in notes I will tell about, which I have read in notes, and then which I have read in internet. So in notes I read that constitutionalism is a political strategy. It is a political strategy associated with liberalism. And liberalism is a philosophy which says that talks about limiting the government. I will not go in detail about liberalism here, but in brief I can say that in liberalism we talk about the freedom of a person. Freedom of person. If we talk about complete freedom of person, or you can say that more freedom of person, if a person will have more freedom, that means that the state will have less authority. Like John Locke said that about life, property and livelihood. So in this respect, John Locke say that state have less authority than a person. So here we talk, so indirectly he says that there is a limit on the authority of state or government. So in liberalism we limit the government authority or powers. So indirectly constitutionalism is also saying the same thing. Okay, which I found that constitutionalism with respect to constitutional morality, that which I found more suitable is that it is a doctrine which says that there are some fundamental principles in a constitution. Okay, what does it mean? It is a doctrine which says that there are some fundamental principles in a constitution. So what are these fundamental principles? So first thing is which is universal, is rule of law. And second thing, separation of power. There are more things, but I found these two very basic, and I can say that these two are found in almost all the constitution of a democratic country. So if we are obedient, now coming back to the definition of constitutional morality. So what does constitutional morality say? Adherence to the constitutionalism. And what constitutionalism say? That it is a doctrine that there are some fundamental principles found in a constitution, and rule of law and separation of power are one of them. So if you are obedient towards rule of law and separation of power, then we can say that we have constitutional morality. अब जनरल सी बात करें अगर हम, तो किसी भी देश में किसी कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी होता है? अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव करेगा. इफ़ वी आर नॉट obedience towards the constitution, then what is the point of that constitution? तो वो constitution
का फ़ायदा ही क्या है? अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स को मान ही नहीं रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होना ज़रूरी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स को माने। अगर सरकार कह दे या और लोग भी कहते, किसी भी देश की सरकार और वहाँ के लोग ये कह दें कि हम इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स को मानते ही नहीं है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूशन रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम क्यों माने कॉन्स्टिट्यूशन को, इस क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, तो हम बात इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वहाँ पर रूल किसका चलता है। अगर इंडिया में हम कह रहे हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, यहाँ के लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, तो हम क्या इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम रूल ऑफ लॉ में मानते हैं। यहाँ पे किसका रूल है, लॉ का रूल है। हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यहाँ पे कोई एक सोवरेन नहीं है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पे सोवरेनिटी किसके पास है, पीपल के पास है। और ये चीज़ लिखी कहाँ है कि सोवरेनिटी लोगों के पास है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। और ये चीज़ जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को तभी मान रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम ये भी मान रहे हैं कि यहाँ सोवरेनिटी किसकी है, लोगों की सोवरेनिटी है। यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ कोई मोनार्कियल रूल नहीं चलता है, यहाँ पे कानून का रूल चलता है। यहाँ कानून सबसे ऊपर है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो इस चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या क्या है, कैसे है, कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं कोट करना चाहूँगा, अगर हम आंसर लिखते हैं जब, तो उसमें हम इसकी इम्पोर्टेंस अगर बतानी हो तो ग्रैनविल ऑस्टिन को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने बोला था कि इंडिया के लिए, कि इंडिया एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, यहाँ पे कॉलोनियल पावर्स आई, उन्होंने रूल किया, वो चली गई एक सोशल रिवॉल्यूशन के बाद। एक सोशल रिवॉल्यूशन हुआ जिससे कॉलोनियल पावर्स ब्रिटिशर्स चले गए, ठीक है। अब यहाँ के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उन्होंने ट्राई किया, इंडिया के लोगों ने, कि वो अपनी इस ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट करेंगे, और वो भी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी मॉडर्न है और हमारी सोसाइटी ट्रेडिशनल है, तो इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का रहना बहुत ज़रूरी है अगर हमको ये मॉडर्न सोसाइटी बनना है तो। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ऐसे हमको समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। और यहीं पर ही अब मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो अम्बेडकर जी ने बोला था अपनी स्पीच में, जो ग्रामर ऑफ एनार्की के नाम से फेमस है, ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच। इसमें इन्होंने बेसिकली बात की थी कि जो इंडिया की जो रिवॉल्यूशन है उस पर, और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के उसमें भी। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सोशल डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स ओपिनियन भी हैं, अब इन डाइवर्स ओपिनियन से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी बात मनवाने का पूरा अधिकार है, और अपनी बात कहने का भी, अपनी ओपिनियन को ऊपर रखने का। तो
अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मॉडर्न सोसाइटी बनना है तो यहाँ पे कई बार हमको अपने जो ओपिनियंस हैं उनको रेस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था सेल्फ रेस्ट्रेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के कंटेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। अब ये सेल्फ रेस्ट्रेंट कौन किसके लिए? सेल्फ रेस्ट्रेंट एक पॉलिटिकल हेड के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, कोई हेड है। एज अ सोसाइटी हमारे लिए, सोसाइटी में कौन है? हम ही हैं, पीपल हैं, कोई भी है। यहाँ पे सेल्फ रेस्ट्रेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं रहेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो हम कभी मॉडर्न सोसाइटी नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम दोबारा गुलाम बन सकते हैं। तो इस बार ब्रिटिशर्स पे ब्लेम करने के लिए ब्रिटिशर्स होंगे नहीं, इस बार हमारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम दोबारा गुलाम हुए तो वो पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानना बहुत ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जॉर्ज ग्रोट जो हैं एक, उन्होंने भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जॉर्ज ग्रोट इज़ ऑफ पैरामाउंट रेवरेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये बात की थी। तो आंसर्स में इनको कोट कर सकते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन को कोट कर सकते हैं, अम्बेडकर जी को कोट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? एडियरेंस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है सेल्फ रेस्ट्रेंट इंडिया के कंटेक्स्ट में भी, जहाँ पर हम खुद की ओपिनियंस को रोक के रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं उनको मानते हैं। एज ए कलेक्टिव फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ओबीडियंट है। तो इतना ही है इसमें अभी के लिए। तो थैंक यू।